Hussain. The topic is effects of probiotics on cognitive functions. So, dear sir, please you can take over and you can continue, Mr. Abrar Hussain. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग को मेरा आवाज आ रही है? Yes, sir, you are audible. You may continue. ओके, और स्क्रीन भी शेयर है, सही है सब कुछ? Yes, sir. ओके ओके, so thank you very much for giving me the opportunity to describe my opinion about the probiotics, as I'm directly associated and completed my research on this particular topic. So today we will talk about the effects of probiotics on cognitive function. It's mean we are related to things. As this webinar is also organized by the True Medical Wellness Association, which is related to most medical side, and the second partner is the Probiotic Society of Pakistan, which is mostly associated to the probiotic science. So this is just interaction between the two societies, and also they can cover both aspects of probiotics. Besides this, it also gave some new aspects of research area, and also it will enlighten you about the how microorganisms are used for multi-purposes, for example. So let's start properly the effects of probiotics on cognitive function. So the objective of this session include to learn the concept of probiotics, mean that as I receive many registrations, so most of them are not related to probiotics. So those who are not directly related to probiotic science will learn about what are probiotics. So we will go very brief about the probiotics, and you will also learn the benefits of microorganism. As mostly जो हम जब microorganism का नाम सुनते हैं तो definitely हमारे जहन में यही आता है कि this must be pathogenic और ये खतरनाक होगी, and it may cause some kind of diseases, but it's not the case every time. So we have some microorganisms which have some beneficial properties, and probiotics is one aspect of them. Then to elaborate the role of gut-brain axis, it is considered a very hot topic of research currently, that how gut-brain axis are interrelated, and how the gut microbiota can affect the brain functions. So it is considered a very hot topic of research currently. And then at the end, we will talk about enrich the knowledge of cognitions, mean that अगर आप में से कोई relate हो medical science से, for example बहुत से student थे जिसने from D का option लिखा था कि we are from D background, so definitely they treated some disease related to psychiatrist or psychology. So इसका भी थोड़ा सा cognition के हवाले से थोड़ा सा मिलेगा, and then we will recombine both of these, कि probiotics पहले पढ़ेंगे, फिर cognition पढ़ेंगे, फिर इस दोनों का relation क्या है. So the contents of today's session will include the brief overview of probiotics, the cognitive function in a glance. It means we will go very briefly about these two because it's just a background knowledge. Then microorganism in the gut, especially in especially probiotics in the gut. Then what are the evidence of probiotics usage for cognitive function? It means that definitely if you perform some research work, so we have some background knowledge, we do some literature review. So वो कौन सी aspects थी, वो कौन सी proof थी कि उसने बताया कि yes, we can also use probiotics for their particular functions. Then probiotics mechanism of action and cognitive function. So definitely it's the very obvious and very well-known mechanism and well-known to us, and especially for researcher, कि हम जो भी काम कर लेते हैं, जो भी एस्पेक्ट हम पढ़ रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, सब पर हम इसकी एस्पेक्ट देख रहे हैं कि मैकेनिज्म कौन से इन्वॉल्व है. आयो मैकेनिज्म मतलब कोई स्पेशल किस्म की या कोई कॉमन टाइप का रिएक्शन है फॉर एग्जांपल. सो हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, although this not related to us because आप में से बहुत से लोग ऐसे रिसर्च नहीं करते, हमारे मैकेनिज्म के साथ कोई ताल्लुक है, लेकिन जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग थोड़े से देखेंगे इसमें. Then cognitive disorder and role of probiotics in their treatment. So we'll just talk very brief. For example, Alzheimer disease जो क्या है, वर्षिंग probiotics का क्या role है. So let's start. Very brief overview about the probiotics for those who are not familiar with the probiotic science. So
Okay, let's manage that I'm talking very fastly, although I reduce my rhythm very, but still. So okay, I will try my best कि मैं बहुत slow बोलूँ. So probiotics in a glance अगर हम बताएं तो probiotics science जो था वो start हुआ था in 19th century, 20th century. मतलब it's very considered a young field as compared to others. First of all, Russian Nobel laureate scientist Ilya Metcalf in 1907 he proposed the concept of probiotics. और इसने ये बताया कि if you consume foods which contain, for example, like yogurts, which contain some lactic acid producing bacteria, so it may increase our longevity. It's mean जाहिर बात है दुनिया में जितने भी लोग हैं वो ये कंसिडर कर रहे थे कि हम ज्यादा से ज्यादा जिंदगी मतलब हमारी जिंदगी ज्यादा हो जाए, हमारी लाइफ जो एक्सटेंड हो जाए. तो इसके लिए लोगों ने इस साइंटिस्ट ने प्रपोज कर लिया कि अगर हम वो सिर्फ ऐसे सब्सटेंसेस डालें जिसमें प्रोबायोटिक्स यानी मतलब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, दे डोंट गिव द कंसेप्ट ऑफ प्रोबायोटिक्स, बट उसने ये बता दिया कि जिसमें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हो तो इट में enhance our longevity of the life. Then in 1954, Virgin was a scientist who for the first time proposed the term probiotics and for those substances which are essential for healthy development of life. So this dilemma was started from the 1954. The proper definition of probiotics was firstly proposed by the Stilwell in 1965, that these are the microorganism substances which are secreted by microorganism and used to alter the host microbiota, modulating immunity and enhance the intestinal function. So it's the first proper proposed definition of the probiotics कि ये वो microorganism है जिसको हम लेते हैं और हमारे बॉडी पर पॉजिटिव इफेक्ट पेश कर लेते हैं. Then also proposed by Parker 1974, Fuller 1989, but also proposed by the World Health Organization and Food Agriculture Organization 2001 and 2003. These are the live microorganisms which, when administered in adequate amount, can confer health benefits on the host. So the story started from that particular time, almost 20 years before, कि जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ तवज्जो दे रही कि आया प्रोबायोटिक्स भी हम यूज कर सकते हैं फॉर मनी पर्पसेस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस. सो फिर इसके लिए प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन बन गया इन अक्टूबर 2013, इंटरनेशनल साइंटिफिक एसोसिएशन फॉर प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स व्हिच इज कॉल्ड ISAPP. So for the first time they proposed a definition of probiotics properly and state that these are the live microorganisms which consumed in a sufficient amount can confer a health benefits on the host. It's mean अगर सिंपल वर्ड में हम बताएं प्रोबायोटिक्स वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. सबसे पहले कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो में बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंगस हो सकते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा. सेकंड ये कि इट मस्ट बी लाइफ फार्म, मतलब कोई किल फार्म में या हीट किल फार्म में या फॉर एग्जांपल किसी भी किल फार्म में नहीं होगा. इट मस्ट बी इन द लाइफ फार्म होगा. एंड थर्ड ये कि हम इसको एक खास अमाउंट पे लेंगे. ऐसा नहीं कि फॉर एग्जांपल बंदा कोई 1 लीटर का बैक्टीरिया उसको ग्रो करवा इसको कंज्यूम कर ले, नहीं, बल्कि खास अमाउंट होगा. सॉरी, एक खास अमाउंट होगा इसका. एंड देन इसका फंक्शन या पर्पस क्या होगा? इट मस्ट गिव सम हेल्थ बेनिफिट्स टू द होस्ट. जो भी होस्ट होगा, ह्यूमन होगा या अदर एनिमल होगा, इसको कुछ हेल्थ बेनिफिट्स देगा. फॉर एग्जांपल वो डिजीज की ट्रीटमेंट हेल्प करेगा या फॉर एग्जांपल वो किसी डिजीज को कम करेगा. सो इसका जरूर कोई Sir Ibrar Hussain, if you can please go slowly. काफी requests आ रही हैं. If you can go a bit slow, if you don't mind, ओके नहीं, आई ताकि विल सब हमें टेक आई कर विल डू. लें. लेकिन असल में मसला ये कि मैं अगर थोड़ा सा लेंथी है तो फिर जाहिर बात है लोग तंग हो That's जाएंगे, okay. तो इसलिए. That's fine. That's fine. That's और fine. दूसरा चलें ये, हम सारे coordinate नो नो करते हैं. नो, No worries. You go on, sir. ओके ओके, You go on, sir. थैंक यू. Thank सो इसके बाद फिर हम आएंगे कि आया नाउ हमने पढ़ा कि प्रोबायोटिक्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हेल्थ बेनिफिट्स के लिए यूज होते हैं किसी भी होस्ट के लिए. आया क्वेश्चन एराइज होता है कि आया हर टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम प्रोबायोटिक्स के तौर पर यूज कर लेते हैं? सो द आंसर इज सिली एंड नो. हर किस्म के ऑर्गेनिज्म को हम यूज नहीं कर सकते. इसके लिए बहुत से क्राइटेरिया. फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम सेफ्टी क्राइटेरिया देखेंगे कि फॉर एग्जांपल ह्यूमन एरेजन हो, नॉन पैथोजेनिक हो, रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स हो. इसके बाद फिर हम फंक्शनल क्राइटेरिया देखेंगे. फॉर एग्जांपल इसमें एंटागोनिज्म एक्टिविटी हो, फॉर एग्जांपल इसमें एडहेशन प्रॉपर्टीज हो, अगर हम प्रोबायोटिक्स का या फॉर एग्जांपल वो जो इंटेस्टाइनल लेयर है इसके साथ बाइंड कर सके तो डेफिनेटली कोई फायदा नहीं होगा, हम खाएंगे और फिर स्टूल के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा. देन सम टेक्नोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, अगर हम इस प्रोबायोटिक्स को फॉर एग्जांपल हम यूज करना चाहेंगे अपने पर्पस के लिए, फॉर एग्जांपल फूड की क्वालिटी एनहेंसमेंट के लिए, तो उसकी टेक्नोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए. सो इट मस्ट बी fulfill these technological properties also, and it must have some physiological criteria. For example, antagonism activity, have lactose tolerance, for example, anti-cancer activity, and some other activities. These are just a very brief selection criteria. Otherwise के साथ बहुत ज़्यादा है. Almost I done तकरीबन 15-20 एक्टिविटी यू कैन से कि मैंने खुद किया है. तो इसके अलावा बहुत से हो सकते हैं. डिफरेंट लिटरेचर के साथ टाइम के साथ एक्टिविटीज में इंक्रीज होते जाते हैं. नाउ वेरी सिंपल क्वेश्चन, अगर फॉर एग्जांपल कोई ये क्लेम करे कि
कौन सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम प्रोबायोटिक्स के तौर पर यूज कर लेते हैं? सो देयर आर वेरी फ्यू क्वेश्चन व्हिच मस्ट बी एड्रेस्ड बिफोर अ स्टैंड टू बी क्लेम्ड एज प्रोबायोटिक्स। फॉर एग्जांपल, इसकी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन है, चूंकि प्रोबायोटिक्स एक ऐसा फिनोमेना है जो कि स्ट्रैंड डिपेंडेंट है, सो इट मस्ट बी प्रॉपरली आइडेंटिफाइड स्ट्रैंड लेवल। देन इसमें हम देखेंगे कि इसके साथ कोई इन्फेक्शन तो नहीं है इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ। थर्ड, हम देखेंगे क्या या इसकी इफेक्ट जो खासतौर पर इम्यूनो सिस्टम पर है वो कितनी है। अगर फॉर एग्जांपल ज्यादा हो तो डेफिनेटली फिर ऑटो इम्यूनो डिजीज काज करेगा। फिर हम कहेंगे कि आए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम यूज कर लेते हैं कोई टॉक्सिन तो प्रोड्यूस नहीं कर लेते। और फिर लास्ट हम देखते हैं क्या इसमें कोई ऐसा विरुलेंस जीन नहीं होगा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं होगा। फॉर एग्जांपल हम बैक्टीरिया खा ले वो थोड़ा सा फायदा देगा, लेकिन फिर अगर हम एंटीबायोटिक्स खा ले इसको रेजिस्टेंस शो करेगा तो डेफिनेटली और डिजीज के ट्रीटमेंट नहीं मिलेंगे। सो दीज आर द वेरी फ्यू क्वेश्चन व्हिच मस्ट बी एड्रेस्ड फॉर अ स्टैंड टू बी क्लेम एज प्रोबायोटिक्स। और ये वही टेस्ट है जो कि कॉमन लेबोरेटरी में हो सकते हैं। इट्स नॉट डिफिकल्ट एंड नॉट इट्स वेरी इजी। Now, I'm ignoring all other things about probiotics, but let's come to the health benefits of probiotics. हम इस पर पलटे किए हुए हैं, why we are conducting research on probiotics. So, बहुत से effect इसके पास है. For example, they have a lower blood cholesterol level, they have immunomodulation effect, they also help in the cancer prevention, they are used for the treatment of allergy, inhibit the growth of pathogen, also used for the treatment of diarrhea, they also use inflammatory bowel disease, then also produce some vitamin. They also restore gut microbiome, which is one of the most important function of the probiotics microorganism. And today's topic is also related to this function. Also, they also help in weight loss, and they also help in cognitive function. So we will skip all the other benefits of probiotics, and we will stuck and we will focus on this cognitive functions. Now, a question arises, हमने पढ़ा कि probiotics जो है they are used for cognitive function. Now, what are cognitive function? Cognitive function, those who are not related to cognitive function, ये है क्या चीज होता है? So, very basically and simple term, it is a very broad term which cover a very complex activities. For example, cognition जो है या cognitive function जो है एक broad term है जो कि बहुत सी चीजों को cover कर लेते हैं, which for example इसमें attention है, for example memory है, अटेंशन हो गया, मेमोरी, प्रोसेसिंग स्पीड, एग्जीक्यूटिव फंक्शन, रीजनिंग, प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मल्टीटास्किंग, लैंग्वेज हो गया, थिंकिंग हो गया। मतलब जितनी भी हर वो चीज जो कि मेंटल के साथ, ब्रेन के साथ, माइंड के साथ रिलेटेड है, हर उस एक्टिविटी को हम कहते हैं कॉग्निटिव फंक्शन, यानी कॉग्निशन के साथ इसका रिलेशनशिप है। नाउ इफ यू जस्ट थिंक अबाउट बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, अगर हम इसमें सोचे कि देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये कॉग्निटिव फंक्शन को अंडरस्टैंड करना। और इफ समवन इज सक्सीडेड टू कहलाता है, अगर फॉर एग्जांपल वो सक्सीड हो गया इस काम में कि वो एक इलाज, एक ड्रग डिस्कवर के लिए जो कि मतलब इन चीजों को क्या करेंगे, इसको ट्रीट करेंगे, सो डेफिनेटली इट्स अ ग्रेट सक्सेस इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस। सो दीज आर जस्ट अबाउट द कॉग्निशन फंक्शन। नाउ देयर इज वेरी ब्रीफली कॉग्निशन के हवाले से वो मोस्टली 9 पार्ट्स को कंसीडर किया जाता है कि दीज 9 पार्ट्स मस्ट बी इंक्लूडेड इन कॉग्निशन। हम इसको इसके थ्रू रियलाइज कर लेते हैं कि यस मतलब ये कॉग्निशन है सही या नहीं है। सबसे पहले इसमें है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉग्निशन व्हिच मींस दैट हम अवेयरनेस रहते हैं अपने बारे में। फॉर एग्जांपल हम कौन है, कहाँ से आए, कैसे आए, हम मतलब एक क्या कहलाते हैं, सोचते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने क्या करना क्या नहीं करना। सो दे जस्ट गिव अबाउट द अवेयरनेस ऑफ वन सेल्फ। आल्सो सराउंडिंग के हवाले से भी देते हैं, लेकिन मोस्टली जिसका फोकस होता है ओरिएंटेशन में, ये सोचते खुद अपने बारे में। Second number है attention. Attention is also the property of cognitive function, which means alertness. It's mean कि हमारे माहौल में, हमारे सराउंड में होता कि sometime for example हम alert हो जाते हैं, कभी ये खतरा है, ये ऐसा है, ऐसा माहौल ऐसा है. So all these things are related to cognitive function. Third one is called some is called genosis, some is called gnosis. तो इट्स मीन कि ये वही एबिलिटी है ब्रेन की जो फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई चीज ऑलरेडी सीखा हुआ हो और वो सेम चीज वो बंदा मतलब अगेन हमारे सामने आ जाए तो हम इसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। तो हम कह सकते हैं ना कि फॉर एग्जांपल इस बंदे को मैंने कहीं देखा था, या हम कह सकते हैं फॉर एग्जांपल स्टडी के हवाले से हम कहते हैं कि हाँ इस टॉपिक को मैंने कहीं पढ़ा था या मैंने कहीं मतलब मेरे नजर से गुजरा है। सो दिस इज कॉल्ड नोसिस। ये भी एबिलिटी है कॉग्निटिव फंक्शन की। अनदर फंक्शन इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। एग्जीक्यूटिव फंक्शन इसमें ऑल वही फंक्शन आ जाते हैं जो फॉर एग्जांपल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेजमेंट के हवाले से फंक्शन हो गया, फॉर एग्जांपल किसी भी गाइडेंस के हवाले से, प्लानिंग के हवाले से या रेगुलेटिंग के हवाले से जितने भी काम है ये सारे एग्जीक्यूटिव फंक्शन के अंदर आते हैं। दिस इज आल्सो रेगुलेटेड बाय द cognition or cognitive function. Praxis is another term which is used for mostly those cognitive function जिसको कहते हैं volitional movement. It mean कि for example एक बंदे के खुद जो movements होते हैं इसको इनहेंस करने के लिए या इसको रेगुलेट करने के लिए जो जिस टाइप की कॉग्निटिव फंक्शन यूज किया जाता है इसको प्रैक्सिस कहते हैं। The other cognitive function is called memory. Memory it means
कि हम जो वर्ड फॉर एग्जांपल अब मैं बोलता आप लोग सुनते हो, सो डेफिनेटली देयर मस्ट बी सम कोडिंग एंड डिकोडिंग। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन दोज हु आर रिसर्चर, जिस क्वेश्चन में साइंस आजकल नाकाम हुआ है, जिसका मतलब अभी तक आंसर नहीं दिया, इसमें एक क्वेश्चन ये है कि हाउ वी कैन हियर एंड हाउ वी कैन स्पीक। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ, आप लोग सुनते हो, ठीक है, वर्चुअली आप माइक के जरिए सुनते हो, लेकिन अगर आप पर्सनली बैठे हो तो मतलब वो कौन सी चीज हो जाते हैं, मतलब हम बात कर लेते हैं हवा दरमियान में, डेफिनेटली हवा है, एयर है, अब दूसरे के कान में किस तरीके से पहुंच जाता है, तो कौन सी कोडिंग होते हैं इसमें, कौन सा डिकोडिंग होते हैं। सो इट्स आल्सो मतलब एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें अभी तक साइंस नाकाम है। अगर आप लोग इंटरेस्ट हो तो आप लोग सर्च भी कर सकते हो। तो इसमें एक मेमोरी है, मतलब कौन सी चीज हम डिकोड कर लेते हैं, कौन सी चीज हम पढ़ते हैं, किस तरीके से हम इसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। सो आल्सो रिलेटेड टू कॉग्निटिव फंक्शन। देन है लैंग्वेज, विच इज कंसिडर्ड अ हाई लेवल कॉग्निटिव फंक्शन। फॉर एग्जांपल हम अपने थॉट्स को, एबिलिटीज को, अपने वर्बल एक्टिविटीज को हम इसके थ्रू एक्सप्लेन कर लेते हैं। For example, now I'm speaking and you are hearing, so it's mean I have cognitive function in the form of language. If I don't have, so definitely फिर मैं नहीं speak कर सकता था। Another was called is social cognition. Social cognition means, सोशल कॉग्निशन का मतलब ये होता है कि हम फॉर एग्जांपल अपने खुद और अपने सराउंडिंग के हवाले से सोचें कि ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कैसा काम कर लेते हैं, मैं कैसा हूँ, लेकिन मेरे सराउंडिंग में क्या होता है, किस तरीके से होता है। सो वी विल आल्सो थॉट्स अबाउट दिस पर्टिकुलर पर्सन आल्सो। The another one is called visuospatial skills. Visuospatial skills are also related to cognition, which is called, these are the ability to represent and analyze the, to manipulate an object. Simple मतलब ये हो गया कि फॉर एग्जांपल हमने किसी चीज को देखा तो डेफिनेटली इट डिपेंड ऑन द मेंटल एबिलिटी। एक ऑब्जेक्ट हम देखेंगे तो अगर आम पर्सन तो कहेगा तो ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन अगर मैं देखूँ या एक बंदा देखे, आप में से कोई देखे, तो डेफिनेटली हर बंदे का अपना ओपिनियन होता है, थॉट्स होते हैं। और आप लोगों में बहुत सी एक्टिविटी आजकल सोशल मीडिया पर ज्यादा आते हैं ना, किस फॉर एग्जांपल एक पेगर वगैरह दिया होता है, पिक्चर दिया होता है कि गिव देम अ कैप्शन, मतलब किस तरह से आप इसको व्यूज क्या है, थॉट्स क्या है। सो दीस आर नाइन पार्ट्स आर कंसिडर्ड द अबाउट द कॉग्निशन। सो इस सब चीजों का मकसद सिंपल यही था कि अगर फॉर एग्जांपल हम देख लीजिए तो ऑलमोस्ट कवर ऑल आवर सोशल लाइफ, हमारे पूरी एक्टिविटी को क्या कर लेते हैं, कवर अप कर लेते हैं। तो इसलिए इसके इंपॉर्टेंस को जाहिर करने के लिए थोड़ा सा आपको लोगों को उसको बताना था। नाउ we come इस सब एक थ्योरी थी। now we will come about the microbiota in general, especially in the gut। अब माइक्रोबायोटा है क्या चीज, और इसको हमारे गट में जो जीआईटी सिस्टम है या जो गट है, इंटेस्टाइनल है वगैरह, इसमें इसका क्या रोल है। सबसे पहले हम टर्म्स देखेंगे माइक्रोबायोम। लोगों ने मे भी सुना होगा कि व्हाट इज माइक्रोबायोम। Microbiome or microbiota are synonyms term which means collectively all organisms, microorganisms which are present outside our body and the surface of our body or inside our body is called microbiota। जो मतलब स्किन सरफेस पे है, या हमारे हेयर में है, या हमारे बॉडी के सरफेस पे है, या फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी के अंदर मौजूद है, तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन सब को हम कहेंगे माइक्रोबायोटा कहेंगे। लेकिन इफ यू थॉट अबाउट स्पेशली ह्यूमन, तो अगर हम सिंपल कहें तो ह्यूमन में ऑलमोस्ट 10 की पावर 13 सेल्स होते हैं। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, they give more than 3 million microbial gene as compared to our human body। तो मतलब सॉरी कम्युलेटिवली इसके जो जीन्स अगर हम काउंट कर ले माइक्रोऑर्गेनिज्म की, वो 3 मिलियन बन जाते हैं, जो कि ऑलमोस्ट ह्यूमन के 150 टाइम्स मोर बन जाते हैं। इस तरीके से अगर हम रफली स्पेकुलेट कर ले तो 1000 डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया आर माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर स्टिल आइडेंटिफाइड इन द ह्यूमन स्पेशली। और इन टर्म ऑफ वेट, अगर हम इसको वे कर ले तो ऑलमोस्ट 2 किलोग्राम इसका वजन बनता है। सो डेफिनेटली नाउ यू कैन रिकॉग्नाइज जस्ट फॉर अनदर इंफॉर्मेशन फॉर यू, इसको कहते हैं फॉरगॉटन ऑर्गन। अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा व्हाट आर फॉरगॉटन ऑर्गन, तो फॉरगॉटन ऑर्गन का मतलब ये होता है कि वो ऑर्गन जो मौजूद है लेकिन हमें पता नहीं है। तो इस कहते हैं इस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑलमोस्ट 2 किलोग्राम के फॉर्म में मौजूद है, एंड इवन वी डोंट, हमें फील भी नहीं होता कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या नहीं है। तो इसलिए कि अगर हम इसको कलेक्ट कर ले तो एक प्रॉपर ऑर्गन बनाते हैं, और इस ऑर्गन को हम फॉरगॉटन ऑर्गन भी कहते हैं। सो 2 किलोग्राम ऑलमोस्ट इसका वजन होता है। नाउ गट में स्पेशली, चूंकि इस टॉपिक में मोस्टली हम बात करेंगे गट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ, तो गट माइक्रोबायोम का होता क्या है। सो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे गट के अंदर मौजूद होते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि दे फॉर एग्जांपल दे आर रिलेटेड विद द डिजीज, द हेल्थ, द इम्यून सिस्टम एंड द चेंज इन माइक्रोबायोटा। इसमें कोई भी गड़बड़ हो जाए तो हमारे सारे स्लीप को, मूड को, हैप्पीनेस को, डिप्रेशन को, एंजाइटी को वगैरह को सारे चेंज कर लेते हैं। अनदर थिंग इज दैट कि आजकल जो इसको ईएनएस कहते हैं, एंटीरिक नर्वस सिस्टम, वो ऐसा कहलाता है कि जो हमारे गट है इसमें बहुत ज्यादा न्यूरॉन्स पाए जाते हैं जस्ट लाइक ब्रेन। तो कम्युनिकेट कर लेते हैं डायरेक्टली ब्रेन के साथ, और इस किस्म की बाय डायरेक्शन मूवमेंट को गट ब्रेन एक्सेस कहते हैं। तो ये इफेक्ट कर लेते हैं ब्रेन पर,
किसी वजह से कर लेते हैं क्योंकि इसमें मोस्टली जो सेरोटोनिन न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं, फॉर एग्जांपल डोपामिन, सेरोटोनिन वगैरह, ये गट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर लेते हैं और दे डायरेक्टली इफेक्ट ऑन आवर ब्रेन, और इसकी वजह से फिर हमारे क्या कर लेते हैं, मोस्टली जो स्लीप फॉर एग्जांपल हो गया, फॉर एग्जांपल हमारा मूड है, फॉर एग्जांपल हमारी एबिलिटी है, सारे चेंज होता जाता है। Another thing is that one third of our gut microbiome is common to most people. It's mean कि हम में से जितने भी ह्यूमन है, मोस्टली वन थर्ड ऑफ और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर सेम, मतलब सेम किस्म की बैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल मोस्टली लैक्टोबैसिलस वगैरह बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, बाइफिडो बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, एंटरोटोक्साई मौजूद होते हैं। सो लेकिन जो वन अनदर टू थर्ड्स है, ये क्या है, वो स्पेसिफिक होता है हर ह्यूमन के साथ। एंड if you're researcher, so definitely you must familiar कि अगर इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम ट्रीट किया जाए, इसको हम टारगेट किया जाए, सो डेफिनेटली हम शिफ्ट हो जाते हैं टुवर्ड पीएम मींस पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की तरफ हम शिफ्ट हो सकते हैं। This is just a very brief diagram to show the microbiota gut-brain axis, how microbiota present in the gut can communicate, can affect the brain function. For example, it may be microbial metabolic, produce some metabolites. For example, there are multiple pathways through which these microorganisms can affect the brain function. They may secrete some kind of substances, for example, peptides or hormone, etc. So this is very brief overview about the how gut-brain axis are related. Now, अभी तक जितना हमने देखा पढ़ा, एक सिर्फ एक ताल्लुक था कि हम आ जाए टॉपिक पर। अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करूं प्रोबायोटिक्स एंड कॉग्निटिव फंक्शन, तो आप में से क्वेश्चन कर सकते हैं प्रोबायोटिक्स होता है क्या, होता है कॉग्निटिव फंक्शन क्या होता है, क्या इफेक्ट है, या फॉर एग्जांपल प्रोबायोटिक्स का आइडिया कहाँ से आ गया। सो नाउ यू लर्न वेरी ब्रीफ अबाउट दैट कि प्रोबायोटिक्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कॉग्निटिव फंक्शन हमारी जितनी भी एक्टिविटीज इसको कंट्रोल कर लेते हैं। अब इन दोनों का ताल्लुक क्या है, सो लेट्स स्टार्ट अबाउट दिस। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे या देखेंगे कि ये आइडिया कहाँ से आ गया। अगर आप लोग गौर से सुनेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के ये माइंड भी ओपन हो जाएगा इससे कि हाउ अ रिसर्चर कैन जनरेट देयर ओन आइडिया। टॉपिक पर सिलेक्शन ऑफ रिसर्च किस तरीके से कर लेते हैं लोग, या आइडिया कहाँ से जनरेट हो जाते हैं। सो देखिए, सबसे पहले जो आइडिया क्या है कि हमारे गट में बहुत ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, और ये वेल नोन था कि इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ताल्लुक है ब्रेन के साथ, गट थ्रू गट ब्रेन एक्सेस, ऑलरेडी वेल नोन था। अब जाहिर बात, इस गट माइक्रो ऑर्गेनिज्म में थाउजेंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, मतलब लाखों में करोड़ों में माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। सो डेफिनेटली इसमें ऐसे बैक्टीरिया भी होंगे जो कि अच्छे बैक्टीरिया होंगे। अब साइंटिस्ट ने क्या कर दिया, दे टारगेट दैट पर्टिकुलर बैक्टीरिया का हम इसको हम यूज कर ले, तो गट जो रिस्टोरेशन है, गट के जो नॉर्मल माइक्रोबायोटा वो रिस्टोर हो जाएगा, और हमारे जो ब्रेन फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, इससे रिलेट करेगा, यानी मतलब सही रहेगा। तो इसके लिए या इस आइडिया को लेकर साइंटिस्ट ने प्रपोज कर लिया कि थ्रू गट ब्रेन एक्सेस we can identify a microorganism which is called a probiotics, and they can directly or indirectly affect on the brain function. So इधर से आइडिया जनरेट हो गया। अच्छा, जस्ट अनदर थिंग वो ये कि प्रोबायोटिक्स का जो मेन फंक्शन है बिसाइड अदर, वो है गट रिस्टोरेशन। गट रिस्टोरेशन का मतलब ये है कि हमारी बॉडी के अंदर जैसे हम नॉर्मल लाइफ कर लेते हैं तो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं, लेकिन दे आर वेरी मतलब नॉर्मल फॉर्म में मौजूद होते हैं, इसको यूबायोसिस कहते हैं। अब थोड़ा सा इसमें कंटामिनेट, मतलब थोड़ा सा बैलेंस खराब हो जाए, इसको फिर कहते हैं डिसबायोसिस। और प्रोबायोटिक्स का काम ये होता है कि इन डिसबायोसिस को क्या कर लेते हैं, कवर अप कर लेते हैं, रिस्टोर कर लेता है। अच्छा, दिस जस्ट टू शो द दैट फॉर एग्जांपल हेल्थ स्टेटस में हमारे पास अगर गट जो होगा हेल्थ स्टेटस में होगा तो ब्रेन पर क्या इफेक्ट होगा, सीएनएस पर क्या इफेक्ट होगा, डेफिनेटली एवरीथिंग विल बी ओके। लेकिन अगर आप देखिए गट की जो माइक्रोबायोटा है वो चेंज होता जाएगा, फॉर एग्जांपल इसमें कोई डिसबायोसिस हो जाएंगी, सो डेफिनेटली इट विल लीड टू द एबनॉर्मल फंक्शन इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। So, very brief about the probiotics relation with the cognitive function. It is investigated that probiotics have to reduce cognitive function. For example, जाहिर बात है कोई रिसर्च करता है तो they can cover multiple aspects of one thing. अगर साइंटिस्ट ने फाइंड कर लिया कि अगर हम इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खा ले तो इसमें ये प्रॉपर्टी हो सकती है कि कॉग्निटिव फंक्शन को रिड्यूस कर ले। फिर सम स्टडी आल्सो आइडेंटिफाइड कि अगर फॉर एग्जांपल हम प्रोबायोटिक्स को यूज कर ले तो इसमें जो मेमोरी, फॉर एग्जांपल जो नॉन स्पेशल मेमोरी है या जो शॉर्ट टर्म मेमोरी वगैरह है, इसको हम प्रोबायोटिक्स मतलब ज्यादा इफेक्ट कर लेते हैं, पॉजिटिव इफेक्ट कर लेता है। तो इधर से आइडिया जनरेट वगैरह किया हो गया, आइडिया जनरेट हो गया। इसके अलावा और पोटेंशियल बेनिफिट्स भी आइडेंटिफाइड हो गए प्रोबायोटिक्स के। तो साइंटिस्ट कन्वर्ट फ्रॉम टू यूज प्रोबायोटिक्स फॉर कॉग्निटिव फंक्शन। दिस इज मॉड्यूलेशन ऑफ द गट ब्रेन एक्सेस बाय प्रोबायोटिक्स किस तरीके से कर लेते हैं। सो जस्ट शो के जस्ट प्रीवियसली दिखाया गया कि प्रोबायोटिक्स जाकर गट की जो डिसबायोसिस है इसको यूबायोसिस में कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब जो रिस्टोर कर लेते हैं प्रॉपर फंक्शन के साथ। एंड डेफिनेटली दिस गट माइक्रो ऑर्गेनिज्म देन इफेक्ट ऑन ब्रेन फंक्शनिंग। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन आप लोगों के जहन में आएगा कि आया जितने भी कॉग्निटिव फंक्शन हमने ऑलमोस्ट 9 टाइप्स पढ़े या 9 पार्ट्स पढ़े कॉग्निटिव फंक्शन की, सो आया ये सारी जो है इसको एक ही प्रोबायोटिक से ट्रीट किया जाता है
या फॉर एग्जाम्पल किसी को ज्यादा ट्रीट किया जाता है, किसी को नहीं। सो जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, दिस फील्ड इज कंसिडर्ड वेरी यंग, ऑलमोस्ट तकरीबन 20 साल इस फील्ड की होगी, मतलब जो जनरेट होगी, अभी तक इसमें बहुत काम बाकी है। तो अभी तक स्टिल अननोन है कि कौन सी बीमारी या कौन सी कॉग्निटिव फंक्शन को प्रोबायोटिक्स के थ्रू ट्रीट किया जाता है या ज्यादा ट्रीट किया जाता है। सो अभी तक जो इन्फॉर्मेशन या डेटा अवेलेबल है वो कहता है कि जितने साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, फॉर एग्जांपल अल्जाइमर, एपिलेप्सी, डिमेंशिया वगैरह, इस पर पॉजिटिव इफेक्ट अभी तक आइडेंटिफाई हो चुके हैं। एंड आल्सो द इफेक्ट ऑफ प्रोबायोटिक्स ऑन मूड, जो हमारा मूड होता है, मतलब मूड ऑफ होता है, कि मतलब खुश होता है, हैप्पीनेस, सो ये सारा रिलेट कर लेते हैं प्रोबायोटिक्स के साथ, इस पर इफेक्ट होता है। एंड अनदर जो अवेलेबल डेटा वो शो कर रहे थे कि जो हमारा डिसीजन पावर है, फॉर एग्जांपल हम किस चीज में स्टक हो जाए, क्या करें या ना करें, इधर जाए ना जाए, जो हमारा डिसीजन है वो क्या कर लेते हैं, वो इस प्रोबायोटिक्स पर, अभी तक जो टेस्टेड प्रोबायोटिक्स है वो इस पर पॉजिटिव इफेक्ट शो कर लेता है। अच्छा ना, अभी हमने थोड़ा सा ये देखा कि हाँ, प्रोबायोटिक्स जो है इसका ताल्लुक है ब्रेन के साथ, किसी के थ्रू थ्रू गट ब्रेन एक्सेस के साथ। अब इफेक्ट कैसा कर लेते हैं, मतलब मैकेनिज्म कौन सा है या किस तरीके से है। सो वेरी सिंपली, देर इज नो स्टिल अननोन मैकेनिज्म, इट्स मीन कि मतलब कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जो कि कवर अप कर ले या बताए कि एग्जैक्टली प्रोबायोटिक इसी तरीके से काम कर लेता है। लेकिन जो प्रोपोज मैकेनिज्म है इसमें बहुत से टाइप्स है, फॉर एग्जांपल न्यूरोट्रांसमीटर प्रोडक्शन है जो गाबा वगैरह है या शॉर्ट चेन पीटीएस वगैरह है, कि इसके थ्रू कर लेते हैं। आई एम नॉट डिस्क्राइबिंग द एग्जैक्ट मैकेनिज्म बिकॉज बहुत लेंथी है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है, तो आप लोगों को मतलब कोई फायदा भी नहीं है। Like just understanding they can produce neurotransmitter, they may can increase the availability of precursor substances which can lead to the production of these neurotransmitter. They can also increase the availability of the neuroactive compounds which directly or indirectly can promote the biosynthesis of the neurotransmitter substances. They can also induce change in the gut, और जिसमें जाहिर बात है गट में चेंज आएगी, तो डेफिनेटली इट रिलेट टू द ब्रेन फंक्शन थ्रू गट ब्रेन एक्सेस. Probiotics also have effect on vagus nerve, which may be involved directly in the brain interaction, gut-brain interactions. Similarly, the proposed mechanism state that probiotics have influence on neuron through immunological pathways, different pathways की, तो थोड़ा सा इसमें ऐड भी किया है मैंने चंद pathways, इसके थ्रू क्या कर लेता है, इफेक्ट कर लेता है. Probiotics can also improve the gut barrier integrity. जब फॉर एग्जांपल जो ब्रेन है, गट की जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कोई डिसबायोसिस क्रिएट हो जाए तो इसको रिस्टोर में हेल्प कर लेता है. प्रोबायोटिक्स बैक्टीरिया कैन आल्सो अल्टर द सिग्नलिंग इन्फ्लेमेटरी साइटोकिन एक्टिवेशन. सो वंस द सिग्नल, जाहिर बात है सिग्नल जनरेट हो गया, साइटोकिन प्रोडक्शन कम या ज्यादा हो गया, सो इट विल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट द ब्रेन फंक्शनिंग. सो दीज आर जस्ट द प्रोपोज्ड मैकेनिज्म कि इसके थ्रू प्रोबायोटिक्स क्या कर लेता है, इफेक्ट कर लेता है ब्रेन फंक्शंस को. And this is just a figure which I taken from 2021 paper, जिसमें ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर नॉर्मल बायोसिस हो, गट की ई बायोसिस हो, तो इसका इफेक्ट ब्रेन पर क्या होगा, नॉर्मल नहीं गया. फॉर एग्जांपल इसमें थोड़ा सा चेंज आ जाए, सो डेफिनेटली देयर मस्ट बी द सिक्रीशन, फॉर एग्जांपल शॉर्ट चेन पीटीएस वगैरह, या पर शॉर्ट चेन पीटीएस हो गया, फॉर एग्जांपल साइटोकिन रिलीज हो गया, फॉर एग्जांपल फिथिल बैरियर इंटीग्रिटी में कम ज्यादा हो जाएगा, तो डेफिनेट जो फंक्शन हमने बताई, जो mechanism मैंने बताई, one of the mechanism will be activate and it will affect the brain functions. So as I stated, probiotics can also affect on the brain by multiple pathways. So what are these pathways? So the proposed pathways include increased hypothalamic pituitary adrenal axis reactivity. This means HPA reactivity को कहते हैं, मतलब ये probiotics ज़्यादा कर लेता है. They can also trigger some inflammatory responses which directly indicate कि for example body में कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो अदर सिस्टम एक्टिवेट हो जाते हैं. They can produce short chain PTSS, इसकी थ्रू इफेक्ट कर लेता है. and consume a variety of neurotransmitter and hormones, so definitely production of hormones and neurotransmitter इसका main function है, इसके थ्रू काम कर लेता है. and they can induce modification of myelination, myelin sheath जो होता है न्यूरॉन की, इस पे इफेक्ट कर लेता है. and can also myelin plasticity को increase कर लेता है. can also increase the expression of micro RNA. so these are the detailed mechanism, बहुत मतलब ऐसे सिंपल नहीं कि कैसे कर लेते हैं, लेकिन just for your understanding, अगर फॉर एग्जांपल आइडिया हो, अगर कल आप लोग खुद पढ़े या इस टॉपिक पर इंटरेस्ट हो रिसर्च करने का, वजह से थोड़ा सा आइडिया हो कि यस, these are the mechanism with the help of which probiotics can affect the brain functions. So again, this figure show that pathway involved in the bidirection between gut-brain axis. यानी gut-brain axis किस तरीके से कर लेते हैं? So definite, for example, ये जो hypothalamic pathway मैंने बताया, for example, vagus nerve pathway है, या for example न्यूरोट्रांसमीटर की प्रोडक्शन है, शॉर्ट चेन पीटीएस है, तो डेफिनेटली देयर आर सो मेनी पाथवेज कि मतलब वो इन्वॉल्व है, इसके गट ब्रेन किस तरीके से इंटर रिलेट कर लेता है, इफेक्ट कर लेता है. नाउ अगर हम देखें
ये तो हमने मैकेनिज्म वगैरह देखी कि हमने पढ़ा कि प्रोबायोटिक इफेक्ट कर लेता है, किस तरीके से कर लेता है, हमने प्रोपोज मैकेनिज्म भी देखी। अब आया किसी चीज को प्रोबायोटिक्स जो है ब्रेन फंक्शन को इंक्रीज कर लेते हैं या डिक्रीज कर लेते हैं या क्या कर लेते हैं। सो दीज आर द मल्टीपल इफेक्ट्स। फॉर एग्जांपल इट कैन इंप्रूव, सबसे पहले इंप्रूवमेंट कर लेता है किस चीज में, मूड में, लर्निंग में, मेमोरी में, अटेंशन में एंड थिंकिंग में। इस चीजों में प्रोबायोटिक्स क्या कर लेता है, कॉग्निटिव फंक्शन को इंक्रीज कर लेता है। इट कैन रिड्यूस स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन, इसको डिक्रीज कर लेता है। In terms of production, they can produce a new various kind of neurotransmitter, for example, gamma aminobutyric acid, dopamine, serotonin, etc. And they can also help in the treatment of diseases, for example, the Alzheimer disease, schizophrenia, epilepsy, Parkinson, dementia, etc. So these are, it can improve the function of the brain. It can reduce some negative aspect related to brain. It can produce some substances which can help to brain functioning, and it may help to treat the brain related diseases. अच्छा, these are the सब आप just for common question कि अगर क्वेश्चन नाराज होते क्या है, प्रोबायोटिक्स तो है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोबायोटिक्स अवेलेबल होता है, तो इसमें कौन कौन से यूज होते हैं या कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉमन यूज होते हैं। सो दीज आर जस्ट few माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हिच आई स्टेटेड। मोस्ट इसमें जो होता है इज जनरली मोस्टली प्रोबायोटिक्स आर रिलेटेड टू लैक्टोबैसिलस एंड बाइफिडो बैक्टीरिया, इन दोनों से बहुत ज्यादा यूज होते हैं। सो डेफिनेटली चूंकि प्रोबायोटिक्स लोगों का ज्यादा है, इसलिए इसका इफेक्ट ऑन ब्रेन भी ज्यादा मतलब स्टडी हुआ है और ज्यादा मतलब वेल नोन भी है। So these are the microorganisms which affect or which are used to treat brain functions. Now effects of probiotics on different age people. अच्छा, for you people here, मैं क्या कर लेता हूँ, इसको मीटिंग इन कर लेता हूँ क्योंकि 1 मिनट है। सो 1 मिनट में खत्म नहीं होगा तो काइंडली दोबारा इसी सेम लिंक से ज्वाइन कर ले। इट्स ओके टू यू? Sure, sir. Sure, sure. ओके, थैंक यू।